muted. Yes, we are live. Thanks. We'll just wait for another minute or so and then start. And wait for some more people to join in. Meanwhile, the people who have joined, you can in the chats tell us where you're joining from, what you do, so that we also know where all the audience is joining from. It would be nice to know that. Hi everyone, thanks you for joining. So we'll just another few seconds and we'll start the session. Meanwhile, you can in the chat let us know where you're joining from and a little about yourself. Yeah. Thank you everyone for joining. Welcome to December session of Birding Buddies series. And in this session, we'll be discussing a lot about how libraries and play an important role in connecting children with nature and how library educators can collaborate with nature educators, or they can be involved as both and play a role as both library and nature educators. So, a warm welcome to everyone. So, just before we go on to the actual session, I'd like to do a quick introduction just to what Early Bird's work and what this series of panel discussions is about. So, So for today's session, we have three panelists, Thejaswi, Sanika, and Taukeer, and will
We'll get to know about them very soon. Just to begin with, what at Early Bird, what we believe is we want to get everyone, especially children, close to nature by using birds as a window to nature. And how do we do that? We are trying to create accessible content, resources that can be used to innovatively uh, get people connected and to let them know more about birds, while also encouraging observations and um, trying to get art and games into picture. Other way of doing it is through training educators, and this series is part of that engagement where we want to engage with the network of educators that we have and bring out different aspects of it. So we do birding buddy workshops that largely focus on how better nature educators can, giving them tools and skills to engage with children better. And in outreach, we directly engage with children where we have these monthly walks, or we do an online young birders workshop. So that's what we do. And like I said, this is a series of webinars or panel discussions that we are organizing, where we are trying to bring in different aspects of nature education. And we restarted this series in 2023, where we are trying to focus more on different challenges that the nature educators are facing and how they have overcome it. So, and in today's session, we'll be discussing a lot more about, like I mentioned, libraries and how libraries would be important in bringing such connections with nature. And today's session would be moderated by Tejaswi. So over to you, Tejaswi. And I'll also like to invite you to introduce yourself before we go ahead. Thank you, Amrita, and thank you, Early Bird, for organizing this and inviting us for being part of this discussion. So before I invite Sanika and Taukeer to introduce themselves and start this discussion, my entry into into this space has been since childhood. I was initiated into birding and nature activities at a very young child and traveled with my father and with other birding buddies from my young age, and it continued right into adulthood and continues even today. As I worked, as I joined the school as a school teacher again, about 15 years ago, that's where my interest in communicating and engaging with children more seriously began, although I started that also quite early in my teenage years as well, when we'd go out and new young people would come in for birding sessions. I would kind of go on walks with them. But as far as are concerned, again, childhood interest of reading got transferred into my work in libraries as I joined Center for Learning, which is a school where I was for many years. And now currently, I work in Champaca Children's Library in Bangalore. And through that, I continue my work with children and with other organizations that work in libraries, in the library space. So for me, I have seen the intersection between libraries and nature education in many ways in my experience at Center for Learning, and I look forward to sharing some of those with all of you. Now, Sanika and Taukeer, can you, of course, this discussion will be in Hindi and English, so I'll be switching between the languages, but please forgive me for my Hindi, it's not very good. I'll manage with what I can. But Sanika, Taukeer, आप introduce कीजिए आप. Hi everyone. Thanks Early Bird for inviting me.
My name is Sanika. I am an art educator and visual arts program coordinator at Bookworm Library, Goa. So I've been interested in literature and reading since I was a child, and I have a background in English literature, and I started painting and making art as an adult. And when I was around 23, I started teaching in a school, and it was quite random, but it felt like I had found my calling and that I would be in the education space for as long as I can be. And since the past 2 years, I've been working with Bookworm Library here in Goa, and I'm extremely fortunate to be able to bring these big loves of my life together here, which is art and reading and libraries and uh, education, and also I would say a lot of discovery. I am not someone who has expertise in nature education, but I feel like because of the nature of my work and the space which I'm in and the curiosity which is welcomed and encouraged here, I have been able to bring my own curiosity and love for nature into my work. And I guess I am discovering still along with the communities and the children we work with and some experts and the bookworm team as well. Thank you, Sanika. Uh, I think again there are many things that I can already start thinking of how we can take your journey as part of our discussion as we go forward. तौकीर आप आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हेलो, मैं और मैं उत्तराखंड के जिला हरिद्वार से हूँ। मैं वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो जर्नी रही है वो कुछ ऐसे रही कि मैं पिछले 10-12 सालों से मैं नेचर एजुकेशन रिसर्च कोलैबोरेटर के तौर पे काम करता रहा हूँ। और 2014-15 में जब मैं नेचर एजुकेशन पे काम कर रहा था तो एक कम्युनिटी में मेरा जाना हुआ जहाँ पर वन गुज्जर कम्युनिटी है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर स्कूल से कनेक्ट नहीं है, जो कनेक्ट है तो वो उतने अच्छे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे रीजंस के कारण जो कम्युनिटी है वो अब नेचर से कट गई है, क्योंकि नोमैडिक ट्राइब है और बहुत गहरी नेचर की समझ थी कम्युनिटी को। तो जब हमने देखा कि ये सब क्यों हो रहा है, एक तो बच्चा स्कूल से नहीं जुड़ पा रहा है, दूसरा जो कम्युनिटी का नेचर के साथ रिलेशन है बहुत डीप रिलेशन है कि वो बहुत पहले बहुत अच्छे से रिसोर्सेज मैनेज करते थे और बहुत अच्छे से नेचर को साथ लेके चलते थे और बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया से रिश्ता नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है, जब इस पे विचार किया तो हमने ये देखा कि जो शिक्षा है या जो आज का समाज जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें काट रहा है। शिक्षा जो हमें मिली ऐसी शिक्षा है जो हमें नौकरी की ओर लेके जाती है, जो हमारे पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण को जो हमारे मेन रूट है उनसे हमें काटती है। कहीं ना कहीं एक होड़ में सब लगे हुए हैं। तो उस दौरान ये मन में आया कि शिक्षा पे भी काम किया जाए। और जिस गांव से मैं था वो रिलोकेटेड बस्ती थी राजा जी नेशनल पार्क से, तो वहाँ पे मेरा घर था। तो वहाँ पे मेरे पास जब मैं नेचर में काम करता 2 किताबें हुआ करती थी मेरे पास, बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एक थी फॉरेस्ट फ्लोरा, कांजी लाल करके एक शिवालिक हिल्स का फ्लोरा के बारे में। तो 2 किताबें मेरे पास होती थी। तो जब भी मैं रिसर्च से जब छुट्टियां मिलती थी वापस आता था तो मैं भी यंग एज था उस समय 17 साल के आसपास। तो मैं दोस्तों को बुलाता था तो चिड़ियाएं बताता था कि वो बोलते थे ये तो हमने देखी हुई है, पर उनके पीछे के जो जो कहानियां हैं, जो मतलब एक ऐसे जो स्टोरीज हैं उनकी, एक छोटा सा एक पक्षी कैसे माइग्रेट करता है, एक पेड़ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या फंगी का आपस में कैसे कम्युनिकेशन होता है, या फिर पॉलिनेशन कितना यूनिक चीज है जैसे फैक्ट्री में कैसे होता है। तो ये सारी चीजें मैं शेयर करता था। और उस समय फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हम कुछ लाइब्रेरी को बड़ा करें और कम्युनिटी में जाके एक ऐसी शिक्षा पे काम किया जाए जो किसी
एक मुद्दे को अलग ना देखे, वो नेचर को अलग ना देखे, जेंडर इक्वालिटी को अलग ना देखे, वो कल्चर जो हमारा है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको अलग अलग ना देखे। एक ऐसी समग्र शिक्षा जो सबको साथ में लेके चले, तो उस पर काम करने की शुरुआत की हमने, कोशिश की, और फिर धीरे धीरे एक लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर बनाया, लोगों ने काफी सारी किताबें डोनेट की। तो जो 2 किताबों से जो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अभी हमारे पास लगभग 1,000 किताबें हैं उसमें। मतलब बच्चे आते हैं यहाँ पर, हम सीखते हैं। और उसके साथ साथ मैं कल्चर कंजर्वेशन पे, नेचर एजुकेशन, नेचर गाइड ट्रेन करना, फिर एज ए लाइब्रेरियन, फिर किताबें ट्रांसलेट करना, वो सब पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक अपनी मेन भाषा में मैं अपनी टीम के साथ मिलकर 150 किताबें ट्रांसलेट कर चुका हूँ। तो ये जर्नी रही है मेरी पिछले कुछ सालों से। धन्यवाद तौकीर। अगेन आपके इंट्रोडक्शन से सुनने के बाद भी मुझे लगा कि काफ़ी विषय है जो हम लेके आगे जा सकते हैं। तो तो शुरू करें। पहले मैं ऐसे सोचने लगे कि व्हेन वी थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड लाइब्रेरीज एंड नेचर, एंड हम तीनों लोग बच्चे के साथ और नेचर एजुकेशन के साथ और ये क्या है, लाइब्रेरी के साथ काम काम करने वाले हैं। तो मैं इसके बारे इस ये तीनों विषय को जुड़ के मैं शुरू करूंगा। सो आई वाज थिंकिंग, इफ वी थिंक ऑफ चिल्ड्रन, my own experience has been is that these are two safe spaces. ये लाइब्रेरी जो है, एक इट्स अ सेफ स्पेस वेयर children are allowed to express, and they can find their own journey to read and find their own space to discover the world. अरे नेचर भी ऐसा ही जगह है कि वो पूछता नहीं आपको कि ऐसा करो वैसा करो, सब पेश करता है, और आप एंगेज करने के लिए आप कहाँ से हैं वहाँ से आप तैयारी, कहाँ से वहाँ से यू कैन जस्ट एंगेज। एंड इन माय ओन वर्क विद चिल्ड्रन ओवर द years, I have seen that these two spaces are really in that way similar in that way, although in other ways they are very different. That the library is a space where human knowledge, as we have the knowledge that we have generated in this world and continue to generate, becomes part of it, is organized in particular ways. ऐसा है कि हम सब मिलके उसको क्रिएट करते हैं। मगर नेचर स्पेस ऐसे है कि एक एक तरफ से तो वो चलता ही रहता है। हम वहाँ है या ना है तो वो चलेगा, बट वी आर ऑल्सो देयर एंड वी एंगेज विद इट, और हम उसको बदलते रहते हैं, वी एंगेज विद इट एंड चेंज इट। तो सब अलग अलग ये ऐसा, देर आर डिफरेंट आइडियाज of how libraries and nature spaces are, and then जो जब when they come together, जब मिलते हैं ना, तो उसमें जो विशेषता है, the special space is that positives of these two areas come together and we create a new kind of an experience. मुझे लगता है कि आप दोनों, आपके एक्सपीरियंस से और लाइब्रेरी या क्या है, नेचर एजुकेशन जब मिलते हैं ना, एक उदाहरण देख के कैन यू से कैसा रहा आपका स्वयं एक्सपीरियंस, कैसा था और व्हाट वाज स्पेशल इन दैट, वो विशेषता क्या था उसमें। तो वहां से शुरू करें। सानिका, आप शुरू कर सकते हैं। सो एक एक्सपीरियंस की बात करनी हो तो आई विल शेयर अबाउट one session that we do in the library, which is in the outdoors as well. So we have a session called Soil and Insect Observation and Art. तो इस सेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि चिल्ड्रन टेक मैग्नीफाइंग ग्लासेस, लिटिल बुकलेट्स, पेंसिल्स, and we all go out into nature around wherever the site is. So with Bookworm, we work with government schools in Goa, many community sites, and also with professional development, where I have conducted this online. So that means कि ये जो सेशन है वो ऐसा है कि इट्स नॉट स्पेसिफिक टू वन साइट, ये कहीं भी किया जा सकता है,
सभी लोग अपने अपने एनवायरनमेंट में अपने वो जहाँ भी है वहाँ इफ दे गो आउटडोर्स दे कैन कंडक्ट दिस सेशन. So children see whatever is under their feet. It can be natural, it can be something which has been put there by humans, and we also look for insects. So whatever names they know, they write down. But also we take a lot of non-fiction books from the Bookworm Library collection, which can be about insects, about things found in the outdoors, rocks, different kinds of soils, and children reference these books to write down what they have found in any language that they want. So there's a lot of exchange of names of things in different languages, just a discovery of what's around them. And it's very, very exciting for children to be in the outdoors. I have conducted this session several times in various different places, and each and every time children have been so excited to be there in the outdoors, just looking and noting. I have not seen children so excited to write things anywhere else. So उसके बाद we go back into the space. If it's a school, then in the school, and if it's a community space, then wherever we are conducting the session. And then we hold a collaborative art session where children reference their own notes. And so copying is something that we don't encourage. तो इस point पे जो books है वो side में रखे जाते हैं, तो बच्चों ने जो observe किया है, whatever they have seen, they draw those things, they write it, and it's quite interesting because it's 3 to 4 children sitting around one sheet of paper, drawing and painting from all directions. Yeah, I think that the result is quite different from if you were to say make a chart or an infographic in a school. It's quite collaborative, and it's sourced from whatever is already around children. थैंक यू सानिका. आपने जो कहे कि यहाँ पे देर आर सम यूनिक थिंग्स दैट यू आल्सो शेयर, दैट लाइब्रेरी स्पेस ऐसा है कि वो इट अलाउज फॉर कोलैबोरेशन, it encourages collaboration, it encourages expression. ये जो विशेषता है ना, वो नेचर स्पेस से भी जो होता है, जो वहाँ तो आप ही चले जाओ और फिर देखो पढ़ो जो भी होता है. When you engage with a tree or look at a bird, you can also bring in some of those elements in the library. They are not very different in that sense. So I think you really highlighted that space of what are the shared features of these two spaces. एक और विशेषता आपने जो कही कि क्लासरूम में जो होता है ना, usually what may not happen often in the classroom, लाइब्रेरी में इतनी आसानी से होता है. So लिखने का या बोलने का, express करने का, it's really wonderful that you could see. And having the libraries in the library activity in the outdoor space, again हम सोचते हैं, जब लाइब्रेरी सोचते हैं हम अंदर में सोचते हैं, एक रूम सोचते हैं, कलेक्शन सोचते हैं, ऐसे we have a particular idea, but you can also take elements of that library outside and engage with what is happening outside as well. So I think thanks for sharing. That's an important, I think for many of us, it may be a different way of thinking of the library itself and what it can do. तौकीर, अब आपको मैं पूछता हूँ कि ये नेचर और लाइब्रेरी का जो ये दो जगह जो है, एक स्ट्रक्चर जो है या लर्निंग स्पेसेस जो है, इनको जब आपके अनुभव में जब आप इस दोनों को पास में लाएंगे, तो आपका अनुभव क्या था बच्चे के साथ काम करने में या ये दोनों जगह के काम करने में? सो जब हम लाइब्रेरी सोचते हैं, जब लाइब्रेरी शब्द आता है तो एक चार दीवारी होती है और उसमें बहुत सारी किताबें होती है. पर जब मैं स्पेशली कम्युनिटी के साथ काम कर रहा था, तो जो बच्चे थे वो वैसे फर्स्ट जनरेशन थी जो सीख रही थी, और सैकड़ों या हजारों सालों से वो कभी किसी चार दीवारी के अंदर बैठे नहीं थे. उनके लिए पूरा जो जंगल है, चिड़िया हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, वो उनका लाइब्रेरी था.
तो अगर इस लाइब्रेरी में मैं उन बच्चों को ला के अंदर बिठा के अगर मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश करता, या एक दो बार मैंने ऐसे करने की कोशिश की, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं था, क्योंकि 1 घंटा बैठना बहुत था उनके लिए, मतलब वो कभी ऐसे बैठते नहीं। तो जो लिटरेचर होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। जैसे लाइब्रेरी में कुछ किताबें थी हमारी में, जैसे सीक्रेट गार्डन करके किताब है, जिसको हिंदी में रहस्यमय बगीचा बोलते हैं। तो उसमें पूरा स्टोरी है, श्रुति राव ने लिखा है कि फिग का जो पॉलिनेशन है वो कैसे होता है, फिर उसको जैसे पक्षी खाने आते हैं, फिर उसका सीड डिस्पर्सल होता है। तो जो किताबें ऐसी थी जो नेचर से जुड़ी हुई थी, और बहुत सारी जैसे स्टोरी वीवर में किताबें थी, काबिनी के जंगल के लिए किताब लिखी, मतलब एक स्टोरी लिखी थी रोहिणी मैम ने। और गरिमा भाटिया ने एक बहुत अच्छा सा एक फ्लावर पैकर उस पे कहानी लिखी है स्टोरी वीवर पे। और बहुत सारे ऐसे स्टोरी है जो एकदम जुड़ते हैं जंगल से, पर उन कहानियों को अगर आप क्लासरूम में या लाइब्रेरी में करेंगे तो कुछ निकल के नहीं आता इन बच्चों के साथ। तो मैंने वो किताबें ली, वो किताबें लेके बच्चों को फील्ड में हम लेके गए, फील्ड में बच्चों के साथ बैठे, और उस फिग के पेड़ के नीचे बैठ के वो कहानी की और फिर उसको ऑब्जर्व किया। तो एक लाइव जो एक्सपीरियंस था बच्चों का, और जिस बैकग्राउंड से बच्चे से उनको उस तरीके से जोड़ा उनके साथ। फिर कुछ ऐसे, जैसे अब नेचर के साथ जोड़ना है तो हमारे यहाँ जैसे चमगादड़ होता है तो बहुत अच्छा नहीं लोग मानते हैं। तो चमगादड़ के ऊपर मैंने खुद कहानी लिखी, और उसका जो इकोलॉजिकल रोल है कि एक चमगादड़ कितना यूनिक है और कितना हेल्प करता है। उसका एक और भी एस्पेक्ट है जो हम ट्रेडिशनली सोचते आ रहे हैं कि वो खून चूसता है, ये सारी चीजें करता है, वो सच नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और उस चमगादड़ को आप पॉजिटिवली उस स्टोरी को कैसे लेके जाओगे, तो वो बच्चों के साथ किया, तो बच्चे चमगादड़ के मित्र बने। फिर हमारे आसपास जैसे एक झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है, तो उस पे मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी एक लड़की के साथ की वो कैसे दूरबीन लेके फील्ड में जा रही है, ऑब्जर्व कर रही है आसपास के कोना फ्लोरा को। तो ये जो अनुभव है बच्चों के साथ, ये जोड़े और इनको फील्ड में हम लेके गए। और फिर उसके साथ साथ कम्युनिटी जो हमारी है उसके पास बहुत नॉलेज है, और फिर ऐसी किताबें या ऐसे पार्ट ऐसे चैप्टर में ढूंढे जो उन ट्रेडिशन नॉलेज को जोड़ते हों। जैसे एक कहानी है जो आहान रावल ने लिखी हुई है इंडियन कुक्कू पे। और इंडियन कुक्कू की अगर मैं अपनी कम्युनिटी से कहानी बताता हूँ, तो हमारी कम्युनिटी जब अप्रैल में माइग्रेट करती है तो कुक्कू भी माइग्रेशन करके शिवालिक हिल्स में आ जाता है। तो यहाँ पे आके जब कुक्कू बोलता था, कुक्कू की आवाज सुनेंगे, तो वो बोलता है लो कोतोप, यानी लोगों धूप आ गई है, अब आपको अल्पाइन मेडोज पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शिवालिक हिल्स का जो फ्लोरा है वो अब ड्राई हो चुका है। तो वो जो किताब में या चैप्टर में इंडियन कुक्कू की कहानी थी या कुक्कू की कहानी थी, उसको मैं बच्चों को जब फील्ड में लेके गया, तो एक अनुभव कराया कि देखो जो तुम बोलते हो कि लोको, तो अब ये उसी पक्षी की कहानी है और ये ऐसे दिखता है, क्योंकि कुक्कूज बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, वो सिर्फ सुनाई देता है। तो सब अनुभव कराना बच्चों को। और फिर एक वॉक करता हूँ मैं बच्चों के साथ, वाई वॉक, ऐसा क्यों। तो अगर एक हम जा रहे हैं, कोई एक इंसेक्ट है और एक पेड़ पे पत्ता खा रहा है तो ऐसा क्यों, या एक पेड़ के पत्ते लाल है तो ऐसा क्यों, एक जो मधुमक्खी है वो स्वीट शहद निकालती है तो क्यों। तो ये आंसर नहीं हम करते हैं, बच्चों को इंकरेज करते हैं कि आप निकालिए ऐसा क्यों होता होगा। तो जब आप लाइब्रेरी को आउटडोर में लेके जाएंगे, लाइब्रेरी, और जब आप इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, तो तब बच्चे सीखते हैं और बहुत कुछ निकल के आता है जो करने में बहुत मजा आता है। और फिर एक आपको आउटकम दिखता है थोड़ा उसमें। तो इस तरीके से अनुभव रहे हैं बच्चों के साथ। और फिर काफी बच्चे काउंटर सवाल भी खड़े करते हैं, जब हम कई बार ऐसा होता है कि नेचर एजुकेटर लेक्चर झाड़ना शुरू कर देता है, पर फिर अब अगर बच्चों को सोचने वाला बनाएंगे तो वो कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो इस तरीके से बहुत मजा आता है मुझे तो बच्चों के साथ। जी थैंक यू ये था। तौकीर। आपने जो बताया कि उसमें एक और विशेषता ये है कि अ, हम समझते हैं यूजुअली लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी एक वर्ड जब आता है हमारे पास, तो हम सोचते हैं कि वो अ, एक कलेक्शन है और कहीं से भी हो वो कलेक्शन बाहर से है, हमारे जो समुदाय जो है उससे बाहर, दिल्ली से या कनाडा से या कहीं और से।
मगर हम ऐसे नहीं सोचते कि हमारी कहानियां, हमारी घर में, हमारी समुदाय में जो कहानियां हैं वो लाइब्रेरी में कैसे आए और उसका कनेक्शन क्या है। आपने जे वो कुकू का कहानी जब आप शेयर किया, वो एक्सपीरियंस जो शेयर किया, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ community stories can also be shared in the context of libraries, and वहाँ में what you bring to that space, और वहाँ से एंड डेफिनेटली ऑफ कोर्स बिकॉज हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर स्टोरीज कहाँ कितने हैं हमारे समुदाय में, और आपके समुदाय तो एक you continue to live your natural cycles, मेडोज को जाना और फिर वहां वहां से वापस शिवालिक आना, जाना आना, तो अभी कितने साल से चल रहा है पता नहीं, मगर अभी भी चल रहा है, अभी भी चालू है। तो वहां से कहाँ लाइब्रेरी में क्या आता है और कहानी, हाउ डू यू मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस स्पेस, लाइक आपने ही बताया ना, यू हैव created your own books. You have brought in many stories from your communities. तीन चार book आप ही, you have brought that into the library space as well. So wonderful to hear that perspective, that the library is also one welcoming space, and just like the nature's, whatever stories we have can also be part of it. And here I would like to share one experience that I had in Center for Learning when I was working there. We used to have these quite a lot of time in the week where बाहर जाते, वॉक्स में जाते बच्चे के साथ, सेशंस करते, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते वहाँ पे। और फिर ऐसा होता कि कभी कभी 3-4 महीने के बाद हम मिल के एक वो जो एक्टिविटीज, वो गतिविधि जो होते वहाँ पे कुछ आर्ट वर्क होता, क्या कुछ लेखन होता, सम डॉक्यूमेंटेशन में हैव हैपेंड एट द टाइम, उसको सब मिला के वी वुड क्रिएट सम लाइक अ बुक। हमारे ही बच्चे मिलके और टीचर्स मिलके एक बुक बनाते वहां से, और वो बुक हम लाइब्रेरी में लगते, तो वहाँ इन हाउस पब्लिकेशन एक सेपरेट सेक्शन बना के वहाँ नेचर के काफी बुक्स थे। और स्कूल शुरू होने से 30 साल हो गए अभी, 30 या 35 ईयर्स नियरली हो गए, और उतने साल में जितने बुक्स तैयार हो गए ऐसे सब है, वो उसका कलेक्शन का एक भाग ही अलग हो गया है अभी। सो देर इज अ होल हिस्ट्री ऑफ हाउ डिफरेंट चिल्ड्रन हैव सीन, अलग अलग बच्चे कैसे देखते हैं, वो भी लाइब्रेरी में कलेक्शन के माध्यम में आप रख सकते हैं। सो देर इज अ वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन दैट ऑल्सो कैन एंटर द लाइब्रेरी एंड कैन बी पार्ट ऑफ इट, so that you do in your nature education space that can become part of the library and can become, अगले बच्चे जो आते हैं और देखते हैं, they can also learn a lot from that and we can also use it as a resource. तो तो हम सब तीनों देखते हैं ये पोटेंशियल काफी है लाइब्रेरी में। और फिर नेचर एजुकेशन और लाइब्रेरी के अंतर में देयर इज सो मच कनेक्टेडनेस दैट वी कैन रियली इंटरेक्ट, दीज टू स्पेसेस कैन इंटरेक्ट एंड बेनिफिट, बच्चे को काफी बेनिफिट होता है क्योंकि दोनों जगह वेलकमिंग है, और फिर अ, सीखने के लिए एंकरेज करते हैं। और फिर इट्स नॉट लाइक देर कैन बी अच्छे एजुकेटर हो तो बच्चे के साथ, इफ यू आर ओपन विद देम, दे कैन रियली गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ दीज स्पेसेस। तो मगर हम अभी ऐसे बोल रहे कि ओके सब चलता है और थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल, वेर ये भी होता है कि कभी कभी चुनौतियां भी होते हैं कि इस जगह में इट्स एवरीथिंग इज नॉट स्मूथ सेलिंग। कभी कभी आप वॉक में जाओगे तो समथिंग में हैपन ऑन द वे, बारिश शुरू होता है और आप प्लान नहीं करोगे वो एक्टिविटी के लिए, कुछ और प्लान थे, वो यू मे इट मे नॉट हैपन एट दैट टाइम, यू मे हैव टू चेंज योर प्लान्स। सो देर आर स्मॉल इश्यूज लाइक दैट, बट देर कैन ऑल्सो बी बिगर चैलेंजेस। हमारी अप्रोच ही अलग हो सकते हैं और फिर कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे ये दोनों स्पेस में। तो आप, आई वुड लाइक टू आस्क, अब इफ यू ईच वन ऑफ बोथ ऑफ यू टेक वन वन एग्जांपल, या एक विषय लेके आपका, या जनरली भी आप बात करें कि चुनौतियां क्या दिखे हैं आप ये दोनों जगह जब काम में मिलते हैं ना, तो व्हाट डिड यू सी एज अ चैलेंज? सानिका, आप शुरू करेंगे? Sure. So, I think that the smaller challenges that you mentioned with the weather and things like that, I think that I have definitely encountered those. But
the context of the work that I do is within the Bookworm Library and through the library. So there are spaces. There is a very large collection of books. There is also very consistent support from my team for me to explore and experiment and for us to do it together. And also because the work in the library has been happening for so long and with so much depth that even if we uh, go open up something experimental with a community, they are always welcoming because the space is so established for them to be able to share that I feel that it's been quite smooth for me so far, to be honest, in exploring. Even though, like I said, that I'm not an expert in these things, but I think that even that is something that has been welcomed, where I don't know something and I want to know about it. So we can make sessions and modules where it happens that we are all learning from each other. So I feel that this kind of backing and support which is available has mitigated a lot of challenges which might arise if these things were not in place. So the I would only say that if there's a new community with whom we have to do a longer thing, in the beginning there may be some challenges, but overall I think it has gone well, and I thought that I should share this as it is. Actually, I thought about this quite a bit, but this is what I would like to say. Thanks, Sanika. आप again आपने highlight जो किया, what you highlighted really is also important. How working in a particular environment helps us recognize and supports us in dealing with something, even sometimes before it has happened. So you know that if you're well prepared, you may be able to attend to many challenges in the nature of the work that you do, and that experience really matters in how you attend to it. कभी कभी ऐसा होता है कि वो वैसा नहीं होगा ना, कोई आप अकेले हो और अकेले काम कर रहे हैं तो काफी आपको ही देखना है और काम करना है। और तो आपका कैसा रहा तौकीर, आपका अनुभव कैसा था, और फिर कुछ चुनौतियां आप कुछ इस जर्नी में कुछ शेयर कर सकते हैं? सो बाकी चुनौतियां तो है, जैसे फील्ड में जब जा रहे हैं वो अलग तरीके की चुनौतियां होती है, लेकिन उससे पहले इसलिए बच्चे होते हैं। और ये मैंने शुरू में भी बताया कि जो एक एक हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है कि जो पढ़ाई होनी चाहिए वो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, और उससे कुछ आउटकम्स निकलना चाहिए। तो ये स्कूल्स को इन्फ्लुएंस कर पाना या पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर पाना कि हम नेचर एजुकेशन के लिए चाह रहे हैं, ये बना पाना कि भाई ये भी एक विषय है। और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था हमारे लिए कि कम्युनिटी को कैसे बनाएं कि हम बच्चों को बर्ड वॉचिंग के लिए लेके जा रहे हैं, पक्षी दिखा रहे हैं, तितलियां दिखा रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के साथ एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये होता है कि जैसे इतना इंटीरियर हम रहते हैं एक अंदर, एक तो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। मेरे पास 3 साल तक सिर्फ 2 किताबें ही रही जो एज ए लाइब्रेरी में यूज करता रहा, जैसे मैंने शुरू में बताया। फिर ऐसे लोग जुड़ते गए, किताबें भेजते गए, तो रिसोर्स, और फिर जो रिसोर्स दे रहा है वो आउटकम चाहता है एकदम से। और ये शिक्षा में या एजुकेशन में एकदम आपको आउटकम नहीं दिखेगा। 2-3 साल में आउटकम कुछ दिख के नहीं आएगा ऐसा कि ये चेंज हुआ है। बहुत स्लो प्रोसेस है, और एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाएंगे और अगर हम आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं इसमें, तो जो मेन जो कोर होता है फिर वो मर जाता है। फिर आप पढ़ा रहे होते हैं, आपके हाथ में लाठी होती है, आप प्रेशराइज कुछ फिल कर रहे होते हैं बच्चे के अंदर, वो मर जाता है। तो ये डोनर को भी ये समझना चाहिए कि अ, ऐसे स्पेशली नेचर वाले कामों में यानी एजुकेशन वाले कामों में इतना जल्दी आउटकम कैसे निकल के आएगा।
और वो दिखेगा कैसे। और फिर रिसोर्सेज का जो मैंने बताया वो हो नहीं पाता ऐसे गाँव में, एकदम रूरल एरिया में। और तीसरा जो मैं देखता हूँ, ये देखता हूँ कि लैंग्वेज बैरियर ना। लैंग्वेज बैरियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना भी लिटरेचर है अभी, थैंक कर्ली बर्ड की उन्होंने बहुत लोकल लैंग्वेज में काम किया है, कि जितना भी लिटरेचर है आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में है। जितने वर्कशॉप होते हैं, चाहे यंग बर्डर के लिए हो रहा हो या कोई और किसी टेक्निकल चीज के लिए हो रहा हो, सारा इंग्लिश में होता है। तो जो एकदम नेचर के साथ जुड़ा हुआ बच्चा है, जो एक रूरल में जो बच्चा रह रहा है, जो एक कम्युनिटी है, वो लाभान्वित नहीं हो पाती है, वो कहीं पिछड़े रह जाते हैं। और फिर भाषी जो है या अदर दूसरे जो लैंग्वेज के हैं। पर मेरे यहाँ तो एक ये भी चैलेंज था कि हिंदी भी बैरियर ही था, हमें लोकल भाषा में काम करना पड़ा। खुद की किताब बना के, खुद के जो लेक्चर होते हैं वो खुद की अपनी ओन भाषा में, गुजरी भाषा, उसमें हम काम करते हैं। तो ये मैं देखता हूँ, मैं 3-4 चैलेंज। जी। थैंक यू तौकीर। आप अगेन बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंजेस ढूंढ ढूंढ के हम सबके लिए पेश किए हैं, क्योंकि ये एट दैट लेवल लैंग्वेज जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, कलेक्शन कैसे बढ़ाए, हम कैसे करें, एक लाइब्रेरी कलेक्शन कैसे करें जो कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड है, वो कैसे, वो हाउ डज इट रिलेट टू द चिल्ड्रन अराउंड दैम, लैंग्वेज के ऊपर या कंटेंट के ऊपर, हाउ डज इट, क्या कमियां हैं। ये तो बड़ा बड़ा चैलेंज है। जैसे लाइब्रेरी में हम देख चुके हैं काफी सालों से ये चल रहा है, और फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सीरियस लाइब्रेरियंस पूछ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इस पे। तो थोड़े थोड़े आ रहा है अभी। देर आर अ फ्यू पब्लिशर्स हु आर पब्लिशिंग सम बुक्स, मगर आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में हो रहा है। तो हाउ डज इट अफेक्ट millions of children around the country who live in rural areas and who don't have access? नेचर है उनके पास, लाइब्रेरी नहीं है। मगर तो कैसे लेकर जाए वहां पे लाइब्रेरी, कैसे, हाउ डू वी थिंक ऑफ अ लाइब्रेरी प्रोग्राम विच इज contextual and makes sense in that place? तो अगेन दैट्स अ गुड पॉइंट टू थिंक। और दूसरे विषय वो जो आपने बताया कि डोनर इकोसिस्टम क्या है, और फिर वहां से चैलेंजेस क्या आता है, या मेन स्ट्रीम सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, और वहां से जो एक्सेप्टेंस का चैलेंज जो है, लाइब्रेरी का भी है। लाइब्रेरी का तो वहाँ आप देखिए तो द स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। कौन, हु डिसाइड्स व्हाट द बुक कलेक्शन इज, क्या है वहाँ पे, बोरोइंग सिस्टम्स क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, ऑल दिस इज आर चैलेंजेस। और नेचर तो सोचते ही नहीं वो स्कूल के में वी शुड इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दैट वी हैव। एंड आपने बताया कि आपके एक्सपीरियंस से ये च- चालू रहा कि ये कंटिन्यू, दिस continues to be part of what you say. I agree with you. Maybe when I see in my own work, when I see other organizations which work either in libraries or in nature education, the struggle they have to convince people that why is this important, why is this part of education, why is it essential, why is it essential for a child as they grow up, and how does it influence the way they look at the world and the way they see and make sense and relate to the world. So ये तो it's very important questions, and I think um, that's a good point to pause and look at questions from the audience, and then we'll come back if there is anything else that we would like to continue. So so now, if any one of you has a question, please use the hand reaction button, and we'll take your question. Or you can also type your question on the chat. So earlier, when Sanika was mentioning about the books that she's used for the outdoor, uh, they're used for the outdoor activity, uh, someone has asked in the chat, what are, if they can give examples of the book that were used. Okay. So there are a lot of books which are easily available on general insect identification.
But specifically, there are some which I like. One is called The Living Museum, and then there is one called The Poop Book, which I like using because inevitably there is always some poop on the ground when we go out exploring, and it is something that children tend to avoid. So I like kind of bringing it in so that to say that we are looking at everything that is there currently, and not just the things we find beautiful, but everything that is actually there. And yeah, there is one book called Butterflies of Goa. There's also, yeah, like I said, there's many books around insects, non-fiction books, which can be found easily. But these three books are quite nice, and all of them are Indian publications. So yes, I use these. थैंक यू सनिका। आई थिंक तौकीर में भी बताया कि वो फिग के ऊपर, तौकीर वो आप उसका नाम चैट में रखेंगे कि उसका नाम क्या है? आई थिंक वो इमेज बहुत छोटा है, आप नाम लिखिए चैट में एक बार, सबको मिलेगा। So there is also one more book that, just like Taukeer has suggested, called The Coral Tree. It's a book published by Tolika. It's also one of my favorites, which talks about the coral tree and how animals and plant and birds and butterflies interact with it through the year. And of course, there is, I mean, there are many books of this kind recently, which also talk of, you know, different places, different location, different habitats, and how you can link them. I think maybe at the end of the talk, we can share a list with all of you who have registered. We can put some resources together and share with you at that point in time. तो वृंदा, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? You had a question, sorry. Yeah, hi. Please, yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah. Hi, everyone. I'm really glad to have joined the call, and it's for me, I think it was sort of a surprise to see Taukeer here because Taukeer and me, both of us, we work in the same community. Taukeer is from the community, but I am working with an organization who basically is working in the same community as Taukeer's, and we are also running libraries out there in the schools. तो मेरा सवाल तौकीर से ही है कि जैसे जो गुजरी भाषा में जो हमारी नेचर रिलेटेड किताबें हैं, इफ आई कैन गेट लिंक्स उनका मतलब अगर मुझे पता लग सके कि अच्छा ये बुक्स हैं, तो हम अपनी लाइब्रेरी में वहीं पे ये बुक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लाइब्रेरीज, जैसे हम यहाँ लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, in the similar manner, like the organization that I'm working with, हम लोग का भी बहुत practical way of learning रहता है वहाँ पे, and we are working with the one Gujjars, जो हमारा community है वहाँ। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा एडिशन होगा फॉर द किड्स जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं। तो तौकीर, अगर आप मेरे को उन बुक्स का नाम अगर आप बता सकें, या मतलब आप यहाँ पे ऐड कर सकें, मे बी हम लोग इन पर्सन भी कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। आई वॉज एक्चुअली नॉट अवेयर कि तौकीर आज ये सेशन लेने वाले हैं। तो वृंदा, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैं सारे लिंक्स और किताबें जो है मैं शेयर कर सकूं। तो बिल्कुल। आई थिंक मैं इन पर्सन आपको ये लिंक्स भेज दूंगा, और हम हाँ जी, अभी ऐसा करते हैं कि इनकी जो मैं करता हूँ, जो ये ऑनलाइन है, सारी हाँ, कॉपी है जो बनाई हुई हमने, तो राइट, प्रिंट निकाल के हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हैं। तो जितने बिल्कुल, भी किताबें हैं, मैं आपको नेचर से रिलेटेड और नॉन नेचर से रिलेटेड मैं सारे की लिंक्स आपको दे दूंगा। ठीक नो है। इशू। तो वो लैंग्वेज आई थिंक काफी हेल्प करेगा बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू वृंदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तौकीर, आपके लिए एक और प्रश्न है चैट में। ये आप जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स के साथ काफ़ी काम कर रही हैं ना, तो आप ये पूछ रहे कि वो ऐसे बच्चे जो है वो आप
ये क्या है? कौन है? ईना। मेरा हिंदी इतना ही है। आप ईना, आप इफ यू कैन unmute and please ask that in Hindi, that will be very useful. My translation skills are quite poor. Or someone, Ina, are you I can there? do that. Yeah, Sanika, आप okay, please. ओके, सो सवाल ये है तौकीर कि आप जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के साथ आप काम करते हैं, तो उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट का जो नॉलेज उनके पास है ऑलरेडी, जो फॉरेस्ट और हिल से आता है वो, और आपके पास बुक्स है जो अभी आपके पास लाइब्रेरी में है, तो ये दोनों जो नॉलेज है, एक जो उनके एनवायरनमेंट से आता है और दूसरा जो बुक से आता है, वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं या कर पाते हैं? सो हमने बहुत सारी इस पे किताबें खुद बनाई है। जैसे मैंने बताया कि हमने 150 मोर देन 150 किताबें ट्रांसलेट की हैं। और जो जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट लर्नर जो जनरेशन है, उनके लिए हम खुद का टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल बनाते हैं। तो एक टीम है हमारी जो डेली जो बच्चों को पढ़ाने जाती है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। हम 100 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं अभी, लैक ऑफ रिसोर्सेज और क्वालिटी के पर्पज से, कि बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो ये क्वालिटी और वो सब चली जाएगी। सो हम बच्चों के पास जाते हैं और हमें कल क्या सिखाना है बच्चों को, बेसिकली उसका प्लानिंग हम आज करते हैं। और ये देखते हैं कैसे फोक स्टोरी के साथ जोड़ा जा सकता है, कैसे एक रिडल्स एंड प्रोवर्ब्स ला के उसको जोड़ा जा सकता है, फोक सॉन्ग का कैसे यूज हो सकता है। और जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसमें से हम ढूंढते हैं कि कैसे उसको हम नेचर के साथ कनेक्ट करें। और अभी हमने एक और इनिशिएटिव ये लिया है कि कक्षा 5 तक बेसिक जो सिलेबस है वो हम वन गुजरी भाषा में बनाएंगे। ओन करिकुलम होगा हमारा, और वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ होगा, और बाकी चीजें भी उसमें होगी, जैसे सामाजिक और जो भी शिक्षा में आता है वो सब खुद बना के और बच्चों के साथ काम करेंगी। इस तरीके से हम बच्चों को जोड़ते हैं। और ये कोशिश होती है हमारे कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे कहानियां सुने, उनकी जर्नी है जो उनको सुने। और फिर जो बाहर की कहानियां होती है वो भी बहुत जरूरी है कि हम आज पर्टिकुलरली आज हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ फोक स्टोरी के साथ जोड़े रखें या सिर्फ नेचर के साथ जोड़े रखें। कैसे एक व्यापक समझ बने, एक ब्रॉड व्यू या एक अंडरस्टैंडिंग बच्चा बना पाए। तो जो कहानियां होती हैं, जैसे कुछ मैगजीन आती है हमारे पास, छोटी छोटी किताबें आती हैं, साइकिल प्लूटो काफी लोगों को पता होगा। तो ऐसी जो किताबें होती हैं उनकी स्टोरियां होती है, तो वो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं और पढ़ाते हैं। और पूरा एक्टिविटी बेस्ड होता है, ऐसे रोट लर्निंग जैसा कुछ नहीं है, स्कूलों में जैसा होता है वैसा नहीं है। हमें मैथमेटिक्स सिखाना है तो वो एकदम बच्चे करके सीखते हैं, तो इस तरीके का होता है। Thank you, Taukeer. I think again what you said is really important कि बच्चे के लर्निंग जहाँ पे है वहाँ से हम कैसे उनको लेकर आए यहाँ पे, एटलीस्ट इंट्रोड्यूसिंग देम टू बुक्स, और उसके अलग अलग एंगल्स क्या होता है। आई थिंक दैट इज अगेन क्रिटिकल फॉर एजुकेटर्स टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू आंसर पार्टली एंड आप दोनों भी जोड़िए उसमें। एक क्वेश्चन फॉर, they have experienced that kids who read who are not excited to step in the outdoors, what has been their experience? बाहर नहीं जाने के लिए उतना आसक्ति नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उनको उनके, तो वहाँ क्या उनका आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो ये तो आई फील इज अ पार्टली एन अर्बन फिनोमिनन। ये होता है कि शहर में जो होता है कि शहर, चिल्ड्रन हु आर इन चिल्ड्रन एंड दे अटेंड स्कूल्स, they live indoor lives. Outdoor lives is not as much as maybe even a generation back. And in those, I think I've seen this, that there are some children who may not, who, I remember one child who joined the school who was scared of butterflies and frightened, I mean terrified. And I could not understand that, because personally I always thought it was part of your life around you.
But then I understood to accept that that's their experience, that living in an urban environment, it's something that flutters around, and it kind of can create some kind of a fear if you're not exposed to it. So kabhi there is that, and in some spaces we also let children enter the nature space in different ways. You don't have to push them. पहले ही ऐसे ही लेकर जाएं, ऐसे ही प्लान करके सब, just don't push them, but also help them gradually kind of get familiar with different spaces, different say immediately around the school, for example, the outdoor spaces there, before going into something which is wild, maybe in deep into a jungle. So maybe sometimes a gradual introduction, becoming more familiar and comfortable, maybe is one way to do it. Definitely having space for conversation. बच्चे के साथ उनका अनुभव क्या है उसके बारे में बात करने के लिए, कॉन्वर्जेशन करने के लिए, तो आपको टाइम लगना ही होगा. यू हैव टू क्रिएट स्पेसेस फॉर दैट. तो मगर आई थिंक अदरवाइज इट नीड सम टाइम. बट मुझे लगता है कि कभी कभी, अभी तौकीर आप, कैन यू प्लीज रेस्पॉन्ड, एंड सानिका यू प्लीज ऐड एज वेल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कि व्हाट, तौकीर आप तो गांव गांव से आ रहे हैं और फिर वहां तो बच्चे बाहर ही रहते हैं. आई डोंट नो इफ दिस इज रियली अ प्रॉब्लम, वरना हो तो आपको पता है कि देयर मे बी सम चिल्ड्रन इवन इन रूरल एरियाज हु मे नॉट बी कंफर्टेबल बीइंग आउटसाइड. तो मगर आपको क्या लगता है, ये प्रश्न को आपको क्या, हाउ विल यू आंसर दिस? सो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं है. मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ कि सुबह मेरी कम्युनिटी में बच्चे एकदम अर्ली मॉर्निंग हाफिज जी के पास पढ़ने जाते हैं मदरसा, देन उसके बाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर हाफिज जी के पास जाते हैं, और उसके बाद लाइब्रेरी शुरू होता है. उधर तो बच्चे बहुत कम जाते हैं, पर लाइब्रेरी में बच्चे बहुत खुशी खुशी आते हैं, बिकॉज हम उनको बाहर लेके जाते हैं, बताते हैं चीज़ों को और सिखाते हैं. तो रूरल एरिया में और ट्राइबल कम्युनिटी के साथ तो ये चैलेंज या ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा होता है तो उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि एक संवाद स्थापित किया जाए. वो डर क्यों है उसके अंदर, क्यों डर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक स्टोरी होते हैं, कहानियां होते हैं, ऐसे डराया जाता है बच्चों की, ये करोगे तो ये हो जाएगा. वो डर निकालना और एक पॉजिटिव वे में बच्चों को जोड़ना, वही डायलॉग करना. और ये एक दिन में बदलने वाली चीज नहीं है, और इस बदल नहीं रहा तो परेशान होने वाली चीज नहीं है. नेचुरल प्रोसेस, धीरे 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 करके हम जाएं और बच्चे को समझें, और वो डर क्यों रहा है उसके पीछे के डर को पकड़ें और बात करें और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो ये सब सॉर्ट आउट होता नजर आता है मुझे तो. थैंक यू. थैंक यू तौकीर. सानिका, आप जोड़ना चाहते हैं? हाँ, आई वुड ऑल्सो अग्री विद तौकीर कि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया है आज तक, क्योंकि काफी साइट्स जहाँ हम काम करते हैं वो ऐसे है कि लाइब्रेरी सेशंस आउटडोर्स में ही होते हैं, तो इंडोर आउटडोर का वैसा सेपरेशन नहीं है. और दूसरी चीज, हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो हम वहीं की चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो वो अपने ही, मतलब ऐसा भी होता है कि एजुकेटर्स लीड नहीं कर रहे, बच्चे लीड कर रहे, ऐसा भी एक्सपीरियंस आता है. और मैं आई अग्री विद बोथ ऑफ यू कि अगर ऐसा एक्सपीरियंस आए तो बात करना चाहिए, और उससे वो करने के लिए आई वुड लाइक टू ऐड दैट टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर द चाइल्ड टू से नो, एंड फॉर द एजुकेटर टू रिस्पेक्ट दैट नो इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद ही हम फिर वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो उसे फोर्स ना करें. दे डू एंगेज इन देयर ओन वे, और लाइब्रेरीज और नेचर एजुकेशन की यही एक खासियत है कि ये एक ज्यादा इंक्लूसिव स्पेस है. जैसे तौकीर ने कहा कि स्कूल्स में नौकरी की और शिक्षा होती है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस फ्रेमवर्क से बाहर कुछ करें. तो all children and adults have different ways of learning,
And as educators and facilitators, it's our job to create that space for them. And I feel that with continued engagement and negotiation on both sides, बुक्स के साथ और नेचर के साथ दोनों के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सानिका. एंड आप दोनों ने जो कहा, दिस इज अ गुड पॉइंट टू पॉज दिस कॉन्वर्जेशन. मुझे लगता है कि अगेन वी हैव कम बैक टू दैट सेम कोर आइडिया ऑफ हाउ दी स्पेसेस, ये दोनों जगह जो है, नेचर्स लर्निंग स्पेसेस जो है, लाइब्रेरी जो है, और जो जब मिलते हैं ना, तो व्हाट इज द यूनिक व्हाट स्पेस दैट वी क्रिएट. इंक्लूसिव, आपने जो बताया कि वो इंक्लूसिव जगह है, एक्सेप्टिंग जगह है. एंड the more we kind of understand that, the more we can take advantage of both the spaces and use them to kind of have a open out learning opportunities and learning experiences for children. So I think that's a great point to pause here. So Varsha, I think maybe Varsha, sorry, Amrita, is that where we can pause for now? Yeah, and maybe we there's can take just on there's more just questions. one question that's already in the chat, which All right. I'll read out, Yes, and sure. anyone of you who wants to can take Yeah. it up. Okay. So the question says, will introducing writers of nature genre in libraries with kids and interacting with them, will this interaction help in increasing interest among children? सानिका, तौकीर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक कि डेफिनेटली हाँ, मतलब bookworm में there are author talks which happen, and I think when last year it was I think I forget the name of the writer, but it's green humor, I think. I forget their name actually, but they had come, और जब बच्चे ऑथर खुद ही बच्चों के साथ बुक अपने बुक के बारे में इंटरेक्ट करते हैं, तो आई फील दैट वो बच्चों का इंटरेस्ट डेफिनेटली आता है उसमें. आई थिंक इन जनरल वेदर इट इज any topic, I would say that yes, it's author interaction is something that does open things for children. थैंक यू सानिका. तौकीर, आप ही एक लेखक है, तो आपका अनुभव क्या है लेखक होने के नाते, जब आप सो पढ़ते? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑथर जो लिख रहा है ना, हम वर्ड पढ़ पाते हैं ना, शब्द पढ़ पाते हैं, पर उसके अंदर उसका सोल होता है. तो जब ऑथर बच्चों के साथ काम करेगा तो एक सोल लेके काम करेगा. पर वो जो किताब में वो लिख नहीं पाया है, किताब में जो प्रिंट नहीं कर पाया है, जो इलस्ट्रेट नहीं कर पाया है बच्चों के साथ, वो भी करेगा. तो वाकई में वो मजा आता है बच्चों को, और वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बहुत अच्छा होता है. बिल्कुल. Yeah, yeah, I would agree with both of you. एक really sometimes it makes a difference, especially एक और एंगल ये है कि ये कहानियां भी हो सकते हैं उनके पास, जहाँ they may have gone somewhere else and they may have something exciting and interesting to share in the library, or they may be really good in interacting with children and do activities with them in a way that children get excited and interested about nature. So there may be several reasons why bringing an author who has written around nature for children may interest and excite children and bring them to reading and to the book itself. So yeah, thank you Sanika और तौकीर. आप दोनों के साथ बात करने से, I mean, I was really I had a great time. और आपके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस जो है उनको सुनने से मुझे काफ़ी सीखने का, सोचने का मौका मिला. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आप दोनों को. और फिर अर्ली बर्ड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. Thank you so much, Tejaswi, Taukeer, and Sanika, for bringing so much discussion around libraries and nature education and the intersections between these two.
ideas. And for the audience, we have a feedback form that we would like you to fill in. It would take a lot of time, so it would be great if you can fill the form that I have sent in the chat. And this session will also be available on our YouTube channel if you want to visit it again or share it with your peers or someone who might be interested in knowing more about this. So thank you again, Thejaswi, Taukeer, and Sanika, for an insightful session, and the participants for joining. And we'll have the next Birding Buddy session in February now. So thanks everyone for joining.